Welcome students. In today's lecture, we are going to continue the explanation of the short story The Model Millionaire written by Oscar Wilde. So far we have read that Huey is a good looking man, okay, but he is unemployed. Huey एक बहुत अच्छा दिखने वाला लड़का है पर वो unemployed है, okay, and he wants to marry Laura. He wants to marry Laura, but for that he has to earn 10,000 pounds. Okay, and he has a painter friend whose name is Alan Trevor. Okay, at whose studio he meets a beggar. A beggar, and due to his generous nature, he gives that beggar a sovereign. वो वहाँ स्टूडियो में अपने दोस्त के एक बैगर से मिलता है और उसकी हालत पर दया करके वो उसको एक सॉवरेन दे देता है. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी. द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेंट स्माइल flitted across his withered lips. Thank you, sir, he said. Thank you. When Huey gave a sovereign to that beggar, he got surprised. Okay, जब Huey ने उसको वो sovereign दिया तो वो beggar बहुत ही surprised हो गया. Started means to surprise, यानी वो अचंभित हो गया. Okay, and there was a light smile on his dry lips. एक बहुत ही faint means light. Okay, there was a light smile on his dry lips. Flitted means लहराना या मंडराना types. Okay, thank you, sir, he said. Thank you. And he said, thank you, sir. Then Trevor arrived and Huey took his leave, blushing a little at what he had done. He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance, and he had to walk home. Then Trevor arrived, okay, and Huey took his leave. Trevor आता है और Huey अब वहाँ से अलविदा लेता है, ठीक है. And Huey was really happy for what he had done for that old poor beggar. This is called the joy of giving, right? When we do something good for a needy person, our own heart feels really happy. ये जॉय ऑफ गिविंग कहलाता है, राइट. जब ह्यूई ने उस ओल्ड बैगर की हेल्प की तो उसको बहुत ही खुशी हो रही थी. ओके, ही वॉज ब्लशिंग यानी कि शर्माते हुए हंसना. ओके, ही स्पेंड द डे विद लॉरा, गॉट अ चार्मिंग स्कॉल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस. स्कॉल्डिंग होता है डांटना या फटकारना. ओके, देन ह्यूई स्पेंड द डे विद लॉरा एंड लॉरा स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस. एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स फिजूल खर्ची करना, ठीक है. बिकॉज ह्यूई वॉज वेरी पुअर हिमसेल्फ एंड स्टिल ही गेव अ सॉवरेन टू दैट बैगर. दैट इज वाई लॉरा स्कॉल्डेड हिम. ओके, and had to walk home. So Huey had to walk home. Huey को घर जाना पड़ा क्योंकि लॉरा उससे नाराज़ हो गई थी. That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room, drinking hock and scissor. That night he strolled. Strolled means चहलकदमी करते हुए चलना या walk leisurely. Okay. So that night he strolled into Palette Club at 11 o'clock. 11 बजे वो Palette Club में गया. There he found Trevor was sitting alone. By himself means he was sitting alone. Trevor was sitting alone in that club, okay, in the smoking room drinking hock and scissor. And Trevor was sitting in the smoking room, and Trevor was drinking hock and scissor. Hock and scissor, white wine and soda, okay. Well, Ellen, did you get the picture finished all right? Said he as he lit his cigarette. So, Huey asked Trevor. Huey ने ट्रेवर से पूछा, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, क्या तुमने अपनी वो पिक्चर ठीक से पूरी कर ली है. ही आस्क्ड एज ही लिट हिज सिगरेट. उसने अपनी सिगरेट जलाते हुए पूछा. Finished and framed, my boy, answered Trevor, and by the by, you have made a conquest. Now, Trevor answered, I have finished that picture and I have framed that too. मैंने फिनिश कर ली है, उसको फ्रेम भी करवा दिया है, right? And further,
he told Huey, by the way, you have made a victory. By the by means by the way, जैसे हम कहते हैं ना by the way, कि वैसे तुमने एक जीत हासिल कर लिया. यू हैव मेड अ विक्ट्री, यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट मीन्स विक्ट्री. ओके, सो यू हैव मेड अ विक्ट्री. दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू. दैट old model you saw liked you very much. Okay, I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is, what prospects you have. So he was really interested in you, and the old man you saw liked you very much. So I had to tell him everything about you. So ट्रेवर अब ह्यूई से कह रहा है कि वो जो ओल्ड मैन जिसको तुमने देखा था वो तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड था और तुम उसको बहुत पसंद आई. दैट इज़ वाई आई हैड टू टेल हिम एवरीथिंग अबाउट यू. इसलिए मुझे उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा. क्या बताना पड़ा? लाइक हु आर यू, वेयर यू लिव, व्हाट इज़ योर इनकम एंड व्हाट प्रॉस्पेक्ट्स यू हैव. प्रॉस्पेक्ट्स मीन्स तुम्हारी क्या आशाएं हैं, इच्छाएं हैं. ओके. My dear Alan, cried Huey, I shall probably find him waiting for me when I go home. So we saw that Huey was very generous towards that beggar. So the old man was quite interested in knowing him. So he asked everything about Huey from Trevor. ये जो ओल्ड बैगर था वो उसके जनरस नेचर से बहुत इम्प्रेस हो गया था, इसलिए उसने ह्यूई से सब कुछ ट्रेवर से ह्यूई के बारे में सब कुछ जान लिया. ठीक है. नाउ ह्यूई रिप्लाइज, माई डियर एलन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड दैट बैगर वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम. अब ह्यूई ने रिप्लाई किया कि एलन शायद वो घर जाते वक्त शायद वो बैगर मुझे मिल जाए रास्ते में. ठीक है. बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग. बट आई थिंक यू आर जोकिंग. तुम मजाक कर रहे हो. पुअर ओल्ड wretch, that poor old unfortunate person. Wretch means someone who is unfortunate, abhagyashali. Okay, that poor old unfortunate man. I wish I could do something for him. I wish that I could do something for him. I wish I could help him. Okay, I think it is dreadful that anyone should be so miserable. Now he says that इट इज़ सो टेरिबल दैट एनीवन शुड बी सो मिजरेबल. ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि कोई इतनी दयनीय स्थिति में हो. ऐसा कौन कह रहा है? ह्यूई. बिकॉज ह्यूई वॉज रियली काइंड हार्टेड पर्सन. ओके, दैट इज़ वाई ही इज सेइंग सो. आई हैव गॉट हीप्स ऑफ क्लोथ्स एट होम. हीप्स मीन्स ढेर. ओके, सो आई हैव लॉट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट माई होम. हु इज सेइंग? ह्यूई. ह्यूई कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं. डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ दैम? डू यू थिंक दे विल बी यूजफुल फॉर दैट ओल्ड बैगर? कि क्या वो उस बैगर के काम आ सकते हैं? क्या वो उसमें इंटरेस्टेड होगा? वाई हिज रैक्स फॉर फॉलिंग टू पिट्स. रैक्स मीन्स फटे पुराने चिथड़े जैसे कपड़े होते हैं ना, उनको रैक्स बोलते हैं. ओके, हिज ओल्ड क्लोथ्स वर फॉलिंग टू पीसेस. उसके वो पुराने कपड़े तो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे. ओके, दे वर रैग्ड, पूरी तरह से पुराने और फट चुके थे उसके कपड़े. बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन दैम, सेड ट्रेवर. नाउ ट्रेवर सेड, बट ही लुक्स सो स्प्लेंडेड इन दोज क्लोथ्स. स्प्लेंडेड मीन्स शानदार, भव्य. नाउ ट्रेवर कह रहा है कि वो तो उन कपड़ों में बहुत शानदार लग रहे थे. I would not paint him in a frock coat for anything. He says that I would not make a picture of him in some nice clothes. कि मैं अच्छे कपड़ों में तो उसकी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा. What you call rags, I call romance. What you call rags, rags means फटे पुराने चिथड़े जैसे कपड़े. I call romance. Romance means something that is appealing, जो तुम्हें आकर्षित करे. ओके, वो कह रहा है मेरे लिए तो वो एक आकर्षित वाली चीज़ थी. What seems poverty to you is picturesque to me. Now he says that what seems poverty means गरीबी, to you is suitable for a picture for me. अब वो कह रहा है मेरे लिए तो ये पिक्चर बनाने लायक एक चीज़ थी. Okay, however I will tell him of your offer, but still I will tell him about your offer. फिर भी मैं उसे तुम्हारे ऑफर के बारे में बता दूंगा. Alan, said Huey seriously, you painters are a heartless lot. Now Huey says that you painters are
heartless. You do not have pity for old and miserable. कि तुम पेंटर्स लोग जो होते हो बहुत ही निर्दयी होते हो, ठीक है. An artist's heart is in his head, replied Trevor. And besides, our business is to realize the world as we see it, not to reform it as we know it. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. Now, Trevor says that an artist's heart is in his head. Artist का जो दिल है वो उसके दिमाग में होता है. Okay? Trevor says, and our work is to realize the world as we see it. और हमारा काम क्या है, इस दुनिया को उसी तरीके से देखना जैसे कि वो है. It is not our business to reform it. Reform means सुधार करना. ये हमारा काम नहीं है दुनिया को सुधारने का. ऐसा कौन कह रहा है? Trevor. Okay? And now tell me about Laura. Laura के बारे में बताओ. The old man was very interested in her. क्योंकि जो old beggar था, he was really interested in Laura. You don't mean to say you talked to him about her, said Huey. Now Huey was surprised to know that Trevor talked about Laura to that beggar. Huey को बहुत surprised feel हुआ कि Trevor ने उससे Laura के बारे में बात की. Certainly I did. निश्चित रूप से मैंने की है. Yes, I did talk about her. And he knows all about the relentless colonel, the lovely Laura, and the 10,000 pounds. Yes, I did talk about her and relentless. Relentless means nirday. Okay, I did talk about Laura and relentless colonel and 10,000 pounds also. वो कह रहे हैं कि मैंने निश्चित रूप से उनसे लॉरा के बारे में, कर्नल के बारे में और 10,000 पाउंड्स के बारे में भी बात की है. You told that old beggar all my private affairs, cried Huey, looking very red and angry. Now Huey got very angry on Trevor because he told that old beggar all his private affairs. क्योंकि उसने उसकी सारी प्राइवेट चीज़ें किसको बता दी थी? ओल्ड बैगर को. इसलिए ह्यूई को ट्रेवर पे बहुत गुस्सा आया. My dear boy, said Trevor smiling, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. My dear boy, now Trevor tells Huey that the old man is one of the richest men in Europe. कि जिसे तुम बूढ़ा भिखारी समझ रहे हो वो इस यूरोप का सबसे धनी लोगों में से एक है. Okay? He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. He could buy all London tomorrow. वो कल ही पूरा लंदन खरीद सकता है without overdrawing. Overdrawing होता है जमा से अधिक राशि निकाल लेना अपने खाते में से. That means that he could buy all London tomorrow without overdrawing his bank account. कि फिर भी उसके पास पैसा बचेगा अगर वो पूरा लंदन भी खरीद ले तो भी. Okay? He has a house in every capital, dines of gold plate, and can prevent Russia going to war when he chooses. He has a house in every capital. हर एक कैपिटल में उसका अपना एक घर है. And he eats his dinner in gold plates. वो सोने की प्लेट्स में खाना खाता है. And he can prevent Russia going to war when he chooses. कि वो इतना पावरफुल है वो जब चाहे रशिया को वॉर करने से भी रोक सकता है. What on earth do you mean? Exclaimed Huey. What do you mean? Huey was very surprised to hear all these information. Now Huey को बहुत ही सरप्राइज फील हुआ ये सब सुनकर. उसने पूछा What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? What I say, said Trevor. Trevor said that I mean what I say. जो मैं कह रहा हूँ मेरा मतलब वही है. The old man you saw today in the studio was Baron Hausberg. He is a great friend of mine, buys all my pictures and that sort of thing, and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar. The old man you saw today is in my studio was Baron Hausberg. जिस बूढ़े आदमी को तुमने आज मेरे स्टूडियो में देखा वो बैरन हाउसबर्ग है. He is a very good friend of mine and he buys all my pictures and all my art, and he paid me a month ago to paint him like a beggar. उसने मुझे एक महीने पहले कमीशन दी थी कि उसको मैं एक बैगर के रूप में पेंट करूं. And I must say he made a magnificent figure in his rags, or perhaps I should say in my rags. They are an old suit I got in Spain.
Now he says that I must say that he was looking very good in that costume, and those rags were mine. Actually, I got that old suit in Spain. ये कह रहे हैं, ट्रेवर कहता है कि वो उस बैगर की ड्रेस में बहुत ही मैग्निफिसेंट लग रहे थे, और परहैप्स ये कहिए कि वो कपड़े मेरे थे, क्योंकि वो मैंने कहाँ से लिए थे, स्पेन से। वो मेरा कोई ओल्ड सूट था जो उस बैरन हाउसबर्ग ने पहना हुआ था। बैरन हाउसबर्ग, cried Huey. Good heavens, I gave him a sovereign, and he sank into an armchair, the picture of dismay. डिसमे मीन्स निराश होना। आर्म चेयर जो हाथ रखने की जिस कुर्सी पे हैंडल होता है ना, उसे आर्म चेयर बोलते हैं। नाउ Huey cried, Baron Hausberg, shouted Trevor, I gave him a sovereign, and he sank into a chair, and he was very sad. वो बहुत दुखी हुआ और चेयर में बैठ गया। Gave him a sovereign, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. My dear boy, you will never see it again. इस फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है यहाँ। मिस्टर ट्रेवर कह रहे हैं, नाउ ही वॉज लाफिंग रियली हार्ड। ट्रेवर वॉज लाफिंग ऑन ह्यूई। सो ही सेज दैट माई डियर बॉय, यू विल नेवर सी योर मनी अगेन। हिज बिजनेस इज विद अदर मैंस बिजनेस, क्योंकि उसका काम ही है दूसरों के पैसों से काम करना। ओके, आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, said Huey sulkily. Sulkily means रूठ कर, नाराज होकर, and not have let me make such a fool of myself. Now Huey said sulkily. Sulkily means रूठ कर कहना. Okay, he says that I think you should have told me before, कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, and not to have let me make such a fool of myself, ताकि मैं अपने आप को इस तरह मूर्ख के रूप में उसके सामने प्रेजेंट ना करता. Well, to begin with, Huey, said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing alms in that reckless way. अब इसके रिप्लाई में ट्रेवर क्या कह रहा है? I never thought that you distribute alms. alm यानी दान देना, ठीक है? कि मुझे कभी लगा नहीं कि तुम इस तरह दान बांटते हुए चलते हो। इन अ रेकलेस मीन्स केयरलेस वे में, कि तुम यू कभी भी केयरलेस वे में दान देते हुए चलते हो, ऐसा मैंने कभी मेरे माइंड में आया नहीं। ओके, I can understand you kissing a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one. By God, no. By Jove means by God. Okay. So he says that I can understand if you kiss a pretty model. मैं understand कर सकता हूँ अगर तुम किसी pretty model को kiss करो. But I never thought you will give a sovereign to an ugly model. पर मैं ये तो कभी नहीं सोचूंगा ना कि तुम किसी ugly model को एक sovereign दान में दोगे. By God. Besides the fact that I really was not at home today to anyone, and besides the fact that today I was not available for anyone at home, कि मैं किसी से आज मिलने वाला था नहीं घर पे. And when you came in, I didn't know whether Hausberg would like his main name mentioned. और जब तुम आए तब मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि हाउसबर्ग को उनका नाम मेंशन करना अच्छा लगेगा भी या नहीं. Why? You know he was not in full dress, क्योंकि वो फुल ड्रेस में नहीं थे, तो मुझे लगा अगर मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ या नहीं. ओके, What a duffer he must think me, said Huey. Now Huey कहते हैं कि what a fool he must think me. उनको लगेगा मैं कितना पागल हूँ. Not at all, बिल्कुल भी नहीं. He was in the highest spirits after you left. He kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. Not at all. He was in very good mood after you left. He kept smiling and he kept rubbing his old hands together. तुम्हारे जाने के बाद उनका मूड बहुत अच्छा था और वो अपने हाथों को रब कर रहे थे. Okay? I could not make out why he was so interested to know all about you, but I could not understand why he was so interested to know all about you. But now I can understand. वो कह रहा है कि पहले मुझे समझ नहीं आया था कि क्यों वो तुम्हारे बारे में जानना चाह रहे हैं, बट अब मैं ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ. He will invest your sovereign for you, Huey, pay you the interest every 6 months and have a capital story to tell after dinner. Now he says that he will
इंटरेस्ट योर मनी फॉर यू ह्यूई एंड ही विल पे यू इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स, कि वो तुम्हारा ये 1 सॉवरेन इन्वेस्ट कर देंगे और तुम्हें हर 6 मंथ्स के बाद ब्याज भी देंगे. इंटरेस्ट मीन्स ब्याज देना, ठीक है. और ये एक कहानी होगी जो डिनर पे वो हर किसी को सुनाया करेंगे. आई एम एन अनलकी डेविल ग्रॉल्ड ह्यूई. आई एम वेरी अनलकी. अब ह्यूई यहाँ पर बहुत नाराज़ है, ठीक है. द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड. जो एक अच्छी चीज़ मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं सोने चला जाऊँ. माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनी वन. आई शुड नॉट डेयर शो माई फेस इन रो. वो कह रहे हैं, ह्यूई वॉज रियली एम्बेरस्ड, ही वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड. और वो कह रहे हैं कि एलन तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं है क्योंकि मैं और शर्मिंदा होना नहीं चाहता. Nonsense. It reflects the highest credit on your philanthropic spirit. Philanthropic means generous, kind, okay? Huey. What a nonsense. क्या बकवास है. It shows your generous nature, Huey. Don't run away. ये तुम्हारी generous nature को दिखाता है, Huey. तुम यहाँ से जाओ मत. Have another cigarette and you can talk about Laura as much as you like. दूसरी सिगरेट लो और लॉरा के बारे में बातें करो जितना तुम करना चाहते हो. However, Huey wouldn't stop but walked home. Huey नहीं रुका और वो घर की तरफ बढ़ गया. Feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. Huey returned home and he was feeling very unhappy and Alan was laughing so hard. जो Huey था वो embarrass होकर अपने घर की तरफ चला गया और ट्रेवर उसकी कंडीशन पर बहुत ही हंस रहे थे. The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written, Monsieur Gustave Norden, de la part de Emily Baron Hausberg. ये फ्रेंच में लिखा है, ओके. तो अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हेन ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब वो अपना ब्रेकफास्ट ले रहा था, कौन? ह्यूई. द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ कार्ड. एक सर्वेंट आया और उसको एक कार्ड देता है, ऑन विच वॉज रिटन, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर गस्टेव नॉर्डन, जिस पर लिखा हुआ था, जैसे हम इंग्लिश में मिस्टर बोलते हैं ना, फ्रेंच में मिस्टर बोलते हैं, ओके. मिस्टर गस्टेव नॉर्डन. कौन उनसे मिलने आया है? गस्टेव नॉर्डन मिलने आया है. वो किसका मैसेंजर है? वो बैरन हाउसबर्ग का मैसेंजर है, ठीक है. ऑन बिहाफ ऑफ एमले बैरन हाउसबर्ग. और किसकी तरफ से आया है वो? बैरन हाउसबर्ग की तरफ से. Delapart means on behalf of, okay. I suppose he has come for an apology, said Huey to himself. Huey अब अपने आप से क्या कह रहा है कि शायद वो मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए आया है. And he told the servant to show the visitor up. और उसने सर्वेंट से कहा कि वो जाकर उस विजिटर को ले आए. An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said, in a slight French accent, have I the honor of addressing Mr. Erskine? Now he says, Huey thought that this old man has come for an apology, okay? Huey को लगा कि ये old man किसी apology के लिए आया है क्योंकि Huey ने बहुत बड़ी गलती की ना, ऐसा उसे लग रहा था, okay? So it was an old man with gold spectacles. उसके सुनहरे चश्मे पहने थे. And grey hair, सफ़ेद बाल थे उसके. ग्रे हेयर इंग्लिश में वाइट हेयर को, वाइट की जगह ग्रे यूज़ करते हैं, ओके. सफ़ेद बाल थे उनके. एंड ही सेड इन फ्रेंच एक्सेंट. और उन्होंने फ्रेंच में क्या कहा? आई हैव कम फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग. मैं कहाँ से आया हूँ? बैरन हाउसबर्ग की तरफ से. ह्यूई ने क्या कहा? आई हैव कम फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग. ही कॉन्टिन्यूड, द बैरन. आई बैग सर. जैसे वो कह रहे थे तो ह्यूई ने उनको बीच में इंटरप्ट कर दिया. आई बैग सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, स्टैमर्ड है ह्यूई. स्टैमर्ड यानी हकलाना. अब ह्यूई क्योंकि बहुत ही कॉन्शियस हो रहा था, उसको लगा कि शायद वो उससे माफ़ी मंगवाने आए हैं, तो उसने पहले से ही सॉरी कह दिया कि आप मेरी तरफ से उनको माफ़ी के लिए कह दीजिएगा. अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना. द बैरन, said the old gentleman with a smile, has commissioned me to bring you this letter. अब वो ओल्ड जेंटलमैन ने उसको हंसते हुए कहा कि उन्होंने मुझे ये एनवेलप देकर भेजा है. द ओल्ड जेंटलमैन गेव हिम अ लेटर एंड इट वॉज सील्ड इन अ एनवेलप, ओके. एनवेलप होता है लिफाफा, जिसको हम बोलते हैं लिफाफा. सील था ये, जो कि वो ओल्ड जेंटलमैन
ह्यूई के लिए लेकर आया था। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन, जिस लिफाफे के बाहर क्या लिखा था, अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई अगस्टिन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर। उस लिफाफे के बाहर लिखा था कि लॉरा मर्टन और ह्यूई अगस्टिन को एक वेडिंग का तोहफा है, और किसकी तरफ से है? बूढ़े भिखारी की तरफ से, ओल्ड बैगर की तरफ से। ओके, एंड इनसाइड वॉज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड, और उसके अंदर क्या था? अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स। व्हेन दे वर मैरिड, जब उनकी शादी हुई, एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन। एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन ऑफ ह्यूई। बेस्ट मैन क्या होता है? बेस्ट मैन होता है ब्राइड ग्रूम, जो होता है दूल्हा जिसे कहते हैं, ब्राइड ग्रूम्स फ्रेंड हु सपोर्ट्स हिम एट हिज वेडिंग। उसका एक ऐसा दोस्त जो उसकी वेडिंग में उसको हर एक काम के लिए हेल्प करता है, उसको हम बेस्ट मैन बोलते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन वेडिंग्स जो होती हैं तो वहाँ ब्राइड ग्रूम का एक पर्टिकुलर फ्रेंड होता है जो बेस्ट मैन बनता है, जो उससे हर एक काम में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, उसको तो यहाँ उसका बेस्ट मैन कौन बना था? एलन ट्रेवर was the best man, and the baron made a speech at the wedding breakfast। और जो बैरन था, जो ओल्ड बैगर था, उसने उसकी वेडिंग पर एक स्पीच भी दी थी। millionaire models, remarked Ellen, are rare enough। कोई करोड़पति अगर आपके लिए मॉडल बने, ये बहुत रेयर थिंग है। मॉडल बनना यानी पोज देने वाला, हु पोजेस फॉर फोटोग्राफ्स और पेंटर्स, उसको मॉडल कहते हैं ना, जो पेंटर्स के लिए पोज देकर खड़ा होता है या फिर किसी फोटोग्राफ के लिए। ठीक है, उसको मॉडल कहते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? आइडियल पर्सन, यानी कि मॉडल यानी आदर्श रूप जो होता है ना एक, जिसको सब फॉलो करें, उसको भी मॉडल कहते हैं। राइट, तो एलन ट्रेवर क्या रिमार्क कर रहे हैं? मिलेनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ, कि जो करोड़पति आपके लिए मॉडल्स बने वो तो बहुत रेयर होता ही है, बट बाय गॉड मॉडल मिलेनियर्स आर रेयर स्टिल। पर कोई आदर्श मिलेनियर आपको मिले, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात होती है, रेयर होती है, यानी बहुत कम ऐसा होता है। ओके, सो हियर एंड्स योर स्टोरी। थैंक यू।